Hello students, in the previous part we have studied about different types of tissue which are present in animals. In this part we will discuss on nervous tissue. Nervous tissue. The tissue in which nerves are present in a group that makes the nervous tissue. A group of nerve cells is produce nervous tissue. In nerve cell, it is the longest cell of the body. Firstly, we will discuss on how many components of a nervous tissue. There are two components of nervous tissue. एक nervous tissue के दो components होते हैं. दो कौन कौन से? एक न्यूरॉन जिसको हम nerve cell भी कहते हैं, nerve cell, and second one is glia cell. Glia cells. These cells mainly function as a secretory system. Firstly, we discuss on neuron or a nerve cell. It is the longest cell in the body. Its length is nearly 1 meter. The nerve cell or a neuron is the longest cell in the body and its length is nearly 1 meter. There are three main parts of a neuron or a nerve cell. एक न्यूरॉन के या नर्व सेल के कितने पार्ट है? थ्री मेन पार्ट है. कौन कौन से? डेंड्राइट्स, सेल बॉडी इज आल्सो नोन एज साइटोन, and third one is axons. These are the three main part of a nerve cell. How the nerve cell can be constructed and can be drawn, labeled. A nerve cell consists such one like it contains a nucleus centrally located, and these are the hair-like structures known as dendrites. So, what are dendrites? These are the hair-like structures in the neuron known as dendrites. Hair-like structure. Firstly, all the information received by the dendrites in chemical impulses. बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शन होते हैं, जितने भी इंफॉर्मेशन होती हैं, सबसे पहले डेंड्राइट के द्वारा कैच की जाती है. किस फॉर्म में? केमिकल इंपल्स के रूप में. ये डेंड्राइट अटैच किससे हैं? दिस इज द सेल बॉडी. Dendrites are attached with the cell body, or you can say that cytosol. A cell body consists fluid which is known as cytoplasm. This cytoplasm is also consists in this part also. The cell body consists of fluid which is known as a cytoplasm. In cytoplasm there are some granules like structures. कुछ छोटी छोटी granules के रूप में हम structures present होते हैं. These granule structures are known as
nisal granules which mainly consist endoplasmic reticulum and ribosomes. In cytoplasm, the fluid which is known as cytome, a fluid which is present known as cytoplasm. There are some granules like structure also present in cytoplasm. Those are known as nisal granules. And the posterior part, which is a long tube like structure, this is known as axons. At the axons there are some myelin sheath. Myelin is a protein like structure which cover the axons. These myelin sheath is covered with made up of the spatial cell. Those cells are known as Schwann cell. This is the myelin sheath. The axon which is covered by the myelin, that is known as a myelinated neuron. And the neuron in which there is no myelin present, that type of neuron is known as a non-myelinated neuron. But if this axons is covered by special protein called myelin, and which make a myelin sheath. This myelin sheath or this myelin is secreted by special cell which is known as a Schwann cell. ये स्वान सेल होती है माइलिन को सिक्रेशन करती है, जिसके कारण से वो एक्सोन के ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं। और जो सिग्नल्स होते हैं डेंड्राइट को किस फॉर्म में मिलते हैं? केमिकल इंपल्स के रूप में। इसको चेंज कर दिया जाता है इलेक्ट्रिकल इंपल्सिस के रूप में। तो माइलिन क्या काम करती है? इंसुलेटर का काम करती है, ताकि सिग्नल फास्टली पास आउट ना हो जाए, इसके ऊपर प्रेजेंट होती हैं। एक्सोन्स आल्सो प्रेजेंट फ्लूइड. This is also cytoplasm, but in axons this fluid is known as exoplasm. The cytoplasm which is present in axons, that is called exoplasm. Axons are covered with myelin sheath, then the neuron we can say that a myelinated neuron. And the neuron in which there is no myelin sheath present, which type of neuron is called non-myelinated neuron. This is the myelinated sheath, and this one where is the myelin sheath is not present. यहाँ पर बीच में देखिए myelin sheath नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे? Node of Ranvier. This is the node of Ranvier. Where is the myelin sheath not present? myelin sheath present न होने के कारण से यहाँ पर सिग्नल होते हैं जंपिंग स्टेज में, मतलब यहाँ से सिग्नल आए तो सीधा यहाँ से एक यहाँ से ट्रांसफर हो, टाइम लगेगा। यहाँ से उसको सीधा क्या हुआ, यहाँ जंप कर जाता है, सिग्नल फास्टली विगरसली ट्रांसफर हो जाते हैं। सो नोड ऑफ Ranvier इज आल्सो प्रेजेंट इन द न्यूरॉन बिटवीन द myelinated sheath. Clear? At the last end, where the nerve ending, this is the nerve ending part. Where the nerve end, this is the nerve ending. और नर्व एंडिंग के ऊपर एक्सोन के बाद यहां एक नोब लाइक स्ट्रक्चर राइज हो जाते हैं। इस नोब लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं सिनेप्टिक नोब। सिनेप्टिक नोब। There are many transmitters present in this synaptic nodes. Firstly, again we can say that in dendrites, impulses are reformed or received by the chemical impulses. इंफॉर्मेशन जो होती है डेंड्राइट के द्वारा केमिकल इंपल्स के रूप में, इसको तत्काल चेंज कर दिया जाता है, क्योंकि केमिकल के रूप में ट्रांसफर करते हैं इंफॉर्मेशन, वो स्लो रेट से मूवमेंट करती हैं। इसलिए ये सीआई किस में चेंज होती है? इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के रूप में। और ये इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस विगरसली मूव आउट करते हैं, एट लास्ट रीच टू द नर्व एंडिंग, और नर्व एंडिंग पे जाकर के नोब लाइक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं सिनेप्टिक नोब। व्हाई दिस इज कॉल्ड सिनेप्टिक नोब? बिकॉज दीज आर प्रेजेंट इन सिनेप्स। तो फर्स्टली वी विल डिस्कस ऑन सिनेप्स. व्हाट इज सिनेप्स और सिनेप्स? द गैप प्रेजेंट बिटवीन टू न्यूरॉन। ये तो है नहीं कि हमारी बॉडी में एक ही न्यूरॉन प्रेजेंट है,
एक के बाद दूसरी न्यूरॉन है, अब दूसरी न्यूरॉन के क्या होंगे, डेंड्राइट होंगे। तो एक न्यूरॉन के और दूसरे न्यूरॉन के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है, इनके बीच में जो गैप प्रेजेंट, इस गैप को क्या बोलते हैं, सिनेप्स। द गैप प्रेजेंट बिटवीन टू न्यूरॉन इज नोन एज सिनेप्स। द गैप प्रेजेंट बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड सिनेप्स और साइनेप्स। और सिनेप्स के अंदर जो नोव प्रेजेंट उसको क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक नोव। इसके अंदर क्या होता है, जो इंफॉर्मेशन आई है, जो इंपल्सेस आए हैं, यहां आकर के सिनेप्टिक नोव ब्रस्ट होती है, तो न्यूरोट्रांसमीटर, छोटे छोटे सिग्नल जो होते हैं वो यहां पर चेंज हो जाते हैं, यहां पर बाहर निकलते हैं। तो पहली बात तो इसको किस फॉर्म में मिली, केमिकल इंपल्स के रूप में, इंफॉर्मेशन केमिकल इंपल्स के रूप में। यहां से जाते समय इसने किसमें चेंज कर दिया, इलेक्ट्रिकल इंपल्स में। न्यूरॉन के अंदर इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में रन करती हैं, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के रूप में। एज दे रीच टू द सिनेप्टिक नोब, और लास्ट में जहां पर सिनेप्टिक नोब पे पहुंचे तब तक यहां तक वो किस फॉर्म में होती हैं, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस। लेकिन जैसे ही सिक्रेशन होता है तो फिर किस में चेंज हो जाएगी, केमिकल इंपल्सेस के अंदर। क्यों, नेक्स्ट न्यूरॉन का डेंड्राइट इसको फिर रिसीव करेगा, और डेंड्राइट रिसीव करते तो किस फॉर्म में करते हैं, केमिकल इंपल्स के रूप में। इस प्रकार सिग्नल्स होते हैं, वन ट्रांसमीटर, वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन के अंदर ट्रांसमीटर, एंड एट लास्ट दे सेंड टू द टारगेट ऑर्गन, ट्रांसमिट कर दी जाती है। दिस इज द न्यूरॉन, एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, two types. Which one? Firstly is sensory neuron and second one is motor neuron. Sensory neuron and motor neuron. The neuron, firstly देखिए, whenever we pinched with a pin or a we can sting with a we can strike with a sting, कोई काटा या सुई चुभ जाती है, we withdraw our hand spontaneously, हम अपना हाथ तत्काल हटा देते हैं। कारण क्या है इसका, these are the information, जहां से इंफॉर्मेशन चली है, जिस अफेक्टर ऑर्गन से लेकर के इंफॉर्मेशन कहां जाती है, ब्रेन हमारे सीएनएस तक। सीएनएस के दो पार्ट है, एक तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। जितने भी वॉलेंट्री एक्शन है, जो हमारी डिजायर्ड इच्छा अनुसार काम करते हैं, वो सभी कंट्रोल करता है ब्रेन, और जो अनडिजायर्ड मतलब जो विलिंगली एक्शन नहीं है उसको कंट्रोल करती है स्पाइनल कॉर्ड। लेकिन इंफॉर्मेशन सेंसरी के लिए ब्रेन तक वहां भी जाती है। तो इसका मतलब सेंसरी न्यूरॉन कौन सी होती है, जो न्यूरॉन अफेक्टर ऑर्गन से इंफॉर्मेशन को या इंपल्सिस को सेंड करती हैं, कहां तक, सीएनएस। बोले तो या तो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड। द न्यूरॉन विच take the information from effector organ to CNS, that is called sensory neuron। और CNS में जाती है, यानी ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में जाए, वहां से CNS से जो इंफॉर्मेशन और यू कैन से दैट इंपल्सिस, जो न्यूरॉन CNS से इंपल्सिस को कहां तक, दोबारा अफेक्टर ऑर्गन तक लेके आती है, उनको कहते हैं मोटर न्यूरॉन। द न्यूरॉन विच टेक द impulses from effector organ to CNS, that is called sensory neuron. And the neuron which take the impulses from CNS to effector organ, हाथ हमने पीछे खींचना है, तो इस प्रकार इंफॉर्मेशन कहां से आई, CNS से, चाहे वो ब्रेन से आई हो, स्पाइनल कॉर्ड से आई। इस प्रकार के इंफॉर्मेशन, इस प्रकार के न्यूरॉन जो इंपल्सिस को CNS से दोबारा अफेक्टर ऑर्गन तक लेके आती है, उसको बोलते हैं मोटर न्यूरॉन। द नेक्स्ट वन इज न्यूरॉन। न्यूरॉन जो होती हैं और नर्व सेल जो होती हैं, पोलिंग के बेस पे, मतलब पोलर के बेस पे, कितने प्रकार की, देयर आर बेसिकली और मेनली 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। यूनिपोलर न्यूरॉन, बाइपोलर न्यूरॉन, एंड मल्टीपोलर न्यूरॉन।
there is three types of neuron. One more types of neuron is also present, that is called pseudo unipolar neuron. फर्स्टली यूनिपोलर न्यूरॉन वो न्यूरॉन जिसमें अभी आपने देखा कि न्यूरॉन की क्या पार्ट है, डेंड्राइट है, सेल बॉडी है और एक्सोन है। वो न्यूरॉन जिसमें किसी प्रकार के डेंड्राइट ना प्रेजेंट हो लेकिन एक्सोन एक प्रेजेंट होता है। जैसे सपोज कीजिए दिस इज द साइटोन एंड दिस इज द न्यूरॉन एंड एक्सोन्स। इफ द न्यूरॉन कंसिस्ट साइटोन के साथ क्या एक एक्सोन, देयर इज नो डेंड्राइट प्रेजेंट। इसमें एक ही पोल है, एक ही तरफ पोल मतलब एक्सोन है, किसी प्रकार का डेंड्राइट नहीं है। इस प्रकार के न्यूरॉन को बोलते हैं यूनिपोलर न्यूरॉन। दिस इज फाउंड इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। एम्ब्रियो के अंदर, एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर ये मौजूद होती है। द न्यूरॉन इन विच ओनली वन एक्सन प्रेजेंट बट देयर इज नो डेंड्राइट, दैट इज कॉल्ड यूनिपोलर न्यूरॉन। सेकंड इज बाइपोलर न्यूरॉन। बाइपोलर बोले तो दो पोल हो जिसमें, मींस वन डेंड्राइट एंड वन एक्सोन। Suppose this is the cytone and this one is the axon and this contain dendrite, axon and cytone. If this type of neuron present, that is called bipolar neuron. The neuron in which one dendrite and one axon present, that is called bipolar neuron. And this type of neuron is present in human eye. And next one is multipolar neuron. As the name shows, multipolar means कई पोल है इसके। The neuron in which single axons but there are many dendrites present. Dendrites दो या दो से ज्यादा हों लेकिन एक्सोन एक ही प्रेजेंट है। That type of neuron is called multipolar neuron. Mostly बॉडी में ये न्यूरॉन हर जगह पे प्रेजेंट होती है। One more type of neuron is pseudo unipolar neuron. इस प्रकार की न्यूरॉन के अंदर एक ही एक्सोन होता है और ये एक्सोन आगे जाके के डिवाइड होता है टू पार्ट्स के अंदर। एक्सोन एक ही है बट इट डिवाइडेड इनटू ब्रांचेस। देयर इज नो डेंड्राइट। द न्यूरॉन इन विच सिंगल एक्सोन प्रेजेंट एंड दिस एक्सोन डिवाइडेड इनटू ब्रांच। This type of neuron is called pseudo unipolar neuron and this is present in cranial nerves. There are 12 pairs cranial nerves arises in the brain. Brain के अंदर 12 pairs cranial nerves arises होती है, वहां पर प्रेजेंट होती है cranial nerves के अंदर pseudo unipolar neuron. We will discuss on nervous tissue, a group of nerve cell which make the nervous tissue. A nervous tissue consists two parts, nerve, neuron, this one, and next one is glia cell. Glia cell कौन सी होती है? वो सेल जो सिक्रेशन करने का काम करती है। These are mostly secretion cell or secreted cell. जो सेल सिक्रेशन करने का काम करते हैं उनको बोलते हैं गिलिया सेल। अब गिलिया सेल जो होती है वो तीन प्रकार की होती है, माइक्रो, एस्ट्रो एंड ओलिगोडेंड्रो। गीलिया सेल्स बोले तो द सेल्स which only secreted the substances are known as glia cell which make the nervous tissue. There are three types of cells, micro, एस्ट्रो एंड ओलिगोडेंड्रो। माइक्रोसाइट जो सेल होती हैं, मींस जो गिलिया सेल के अंदर माइक्रोगिलिया भी कह सकते हैं, दीज आर आल्सो कॉल्ड माइक्रोगिलिया, एस्ट्रोगिलिया एंड ओलिगोडेंड्रोगिलिया। कैन आल्सो से दैट दिस वन टाइप। Microglia cells mostly used as phagocytic cell. Phagocytic, it means they kill the germs. बैक्टीरिया बॉडी के अंदर बैक्टीरिया जर्म्स एंट्री करते हैं तो उनको किल करने का जो सिक्रेशन सब्सटेंस सिक्रेशन करती है कौन करती है? माइक्रोगिलिया सेल्स। दे फंक्शन यूज्ड एज ए फैगोसाइटिक सेल। फैगोसाइटिक मतलब
किल करना, दे किल द जर्म्स और बैक्टीरिया विच व्हेन दे इंटर्स इन आवर बॉडी. सेकंड वन इज एस्ट्रोगीलिया सेल्स. दीज आर स्टार लाइक स्ट्रक्चर्स. ये सेल कुछ स्टार लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती हैं. क्या करती हैं? ब्लड वेसल्स को नर्व से कनेक्ट कराती हैं, रिपेयरिंग करने का काम करती हैं. दे कनेक्ट ब्लड वेसल्स टू नर्व सेल. पहली काम तो कि नर्व सेल और ब्लड वेसल को आपस में कनेक्ट करती हैं. सेकेंडली, इफ देयर इज एनी डैमेज, ब्लड वेसल्स और नर्व सेल में किसी प्रकार की डैमेज आ जाती है तो इनको रिपेयरिंग करने का काम भी कौन करती हैं? एस्ट्रोगीलिया सेल. तो ये क्या काम करती हैं? एस्ट्रोगीलिया सेल सिक्रेशन जो सब्सटेंसेस है कौन सा इनका? रिपेयरिंग करने का. जो ब्लड वेसल्स में नर्व्स में किसी प्रकार का डिस्टरबेंस प्रोड्यूस हो जाती है तो उसको रिपेयरिंग करने के लिए सिक्रेशन सब्सटेंस कौन सिक्रेशन करती है? एस्ट्रोगीलिया सेल. एंड नेक्स्ट वन इज ओलिगोडेंड्रोगीलिया. ओलिगोडेंड्रोगीलिया सेल कंसिस्ट known as Schwann cell, which we have already discussed. Schwann cell. What is the chemical substance secreted by the Schwann cell? Myelin. तो Schwann cell, ओलिगोडेंड्रोगीलिया सेल कौन सी है? Schwann cell, जो क्या सिक्रेशन करती है? Myelin. This all components makes the nervous tissue. Clear? A nervous tissue consists two components, neuron or nerve cell, and second one is Glia cell. Glia cell, there are main function of Glia cell is secretion. Three types of Glia cell: microglia, astroglia, and oligodendroglia. Microglia act as phagocytic cell, means whenever there are any germs or bacteria enters in our body, the chemical substance secreted by the microglia cell kill that. And second one is astroglia cell. Astroglia cell secreted the chemical substance which repair the blood vessels and nerves if there is any damage. And third one is oligodendroglia cells. Oligodendroglia cell mainly consist known as Schwann cell. These Schwann cells secrete the myelin protein. And what is the role of myelin protein? They act as insulator. क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस पास आउट होते हैं और इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस में किसी प्रकार का मतलब सिग्नल्स होते हैं फास्टली ना मूव आउट कर दे, तो इसलिए इंसुलेटर का काम कौन करता है? माइलिन सीथ करती है. एंड दिस इज द नर्वस टिश्यू.